حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو طرح کی اسپیشل طاقت بخشی ہے۔ ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور ایک کرنے کی طاقت ہے۔ مثلا آپ کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہیں، منہ کو حرکت میں لاتے ہیں، یہ کرنا ہے۔ لیکن اس کام سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے، تو کھانا کھانے کا تصور اور خیال آپ کو آیا، یہ کسی اور طاقت نے کام کیا، اور پھر آپ جب کھانے لگے تو یہ کام کسی اور طاقت نے کیا ہے۔ دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کان دیا ہے اللہ نے کام کرنے کے لیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عقل کا کام اور ہے اور ہاتھ اور پیر کا کام اور ہے۔ اس کو علم کی زبان میں، علماء کی اصطلاح میں قوت فکریہ اور قوت عملیہ کہا جاتا ہے۔ سوچنے کا کام کسی اور طاقت سے ہوتا ہے، ماننے کا کام، خیال میں لانے کا کام یہ کوئی اور طاقت کرتی ہے، اور کرنے کا کام کوئی اور طاقت کرتی ہے۔ پہلے کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے ماننا ہوتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو مانے گا، پھر اس کے بعد میں آدمی کوئی کام کرے گا۔ مثلا آپ نے کسی عالم کو یہاں تقریر کرنے کے لیے فون کیا تو پہلے آپ مان چکے ہوں گے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے فون کیا، تو فون کرنا یہ کام ہوا، اور ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ وہ تقریر کرتے ہیں یہ ماننا ہوا۔ ماننا پہلے ہوتا ہے اور کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بغیر مانے ہوئے کرتا ہے اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کرتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ تو اب آخر وہ مومن کیوں نہیں ہے جبکہ وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب، تمہاری بارگاہ میں جب یہ نفاق والے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر پھر آگے قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین سب جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی نے بغیر مانے
अगर जबान से कलमा पढ़ा, बगैर माने अगर नमाज पढ़ी, बगैर माने अगर रोजा रखा, बगैर माने अगर हज किया, बगैर माने हुए ज़कात अदा की, तो रब की बारगाह में उसकी किसी नेकी का कोई एतबार नहीं है। सबसे पहले मानना जरूरी है, उसके बाद फिर करने का मामला आता है। मानना असल है और करना उसकी फरा है। उसको आप यूं समझ सकते हैं, आपके सामने एक दरख्त है, आप दरख्त को देख रहे हैं, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक छुपी हुई है और एक दिख रही है। जो चीज दिख रही है आप उसको ब्रांच कहते हैं, उसको डाली कहते हैं, उसको टहनी कहते हैं, और जो चीज छुपी हुई है आप उसको जड़ कहते हैं। अगर डाली को काट दिया जाए, टहनियों को तोड़ दिया जाए और जड़ उसकी मौजूद हो, बताइए दरख्त मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके अंदर फिर दोबारा डालियों के निकलने की उम्मीद है या नहीं है? आप कहेंगे बेशक है, लेकिन अगर जड़ काट दी जाए तो जितनी पत्तियां मौजूद रहती हैं वो सब सूख सूख करके जमीन पर गिर जाएंगी और दोबारा उसमें फूल पत्ती नहीं लग सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त में अगर के शाख भी है और जड़ भी है, लेकिन अहम किरदार दरख्त की शाखों का नहीं है बल्कि दरख्त की जड़ का है। इसी तरीके से एक है अकीदा और एक है अमल। अकीदे का ताल्लुक दिलो दिमाग से है और अमल का ताल्लुक हाथ और पैर से है। अकीदा पहले है और अमल बाद में है। अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त है और अमल में गड़बड़ी है तो उम्मीद है कि दोबारा फिर कभी न कभी उसमें फूल पत्ती आ सकती है। लेकिन अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो बज़ाहिर जितनी डाली दिख रही है एक दिन सब सूख करके नीचे आ जाएगी और उसका कोई नफा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे एक नहीं 50 वक्त की नमाज पढ़े। अगर आदमी का अकीदा गड़बड़ है तो एक महीने का नहीं चाहे पूरे साल का रोजा रखे, उसके रोजे और नमाज की रब की बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। और अगर अकीदा दुरुस्त है, आदमी के अकीदे में फसाद और फतूर नहीं है, तो अमल अगर थोड़ा भी होगा तो कुरान फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। आदमी अगर जर्रा बराबर भी नेकी रखता होगा, यानी अगर कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी होगा, तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा वो अपने माथे की आंखों से देखेगा। और वो नतीजा क्या होगा कि कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया भर की नेकियां उसके दामन में बज़ाहिर हों, लेकिन सब के सब क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में जलवागरी फरमाई और 40 साल के बाद जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि रसूल पाक को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद वो नबी बनाए गए। देखिए किस तरीके से उन्होंने दाढ़ी मार दी और कैसे उन्होंने घपला कर लिया। मैं अपने यूपी की जबान में कभी कभी कहता हूं कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर कहीं चारा घोटाला होता है, कहीं ताबूत घोटाला होता है, कहीं कुछ घोटाला होता है, मगर कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हदीस का घोटाला करते हैं। मतलब यह है कि हदीस तो सुनाते हैं मगर अपनी मनमानी उसकी तशरीह करके कौम को गुमराह करते हैं। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली,
बल्कि ये फरमाया गया कि आपने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाना और है और किसी चीज का मिलना और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि आप तो उस वक्त भी नबी थे जब अभी आदम इस दुनिया में जलवा कर ही नहीं हुए थे। आदम तो अभी दुनिया में आ ही नहीं थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उठाइए हदीस की किताब और हदीस की बात आई है तो ये भी ज़हन में रखिए कि इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं और कहते हैं बुखारी शरीफ में दिखाओ कहां लिखा है, बुखारी शरीफ में दिखाओ कहां लिखा है। आप याद रखिए कि जो सिर्फ बुखारी शरीफ की रट लगाए तो समझ जाइए कि उसके दिल के अंदर कुछ न कुछ फतूर जरूर पाया जाता है। इसलिए कि सिर्फ बुखारी शरीफ ही हदीस की किताब नहीं है, बेशुमार किताबें हदीस की मौजूद है। आखिर बार बार वो बुखारी शरीफ ही का नाम क्यों लेता है? इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिर दूसरी हदीस की किताबों को क्यों नहीं वो छूता है, उसे क्यों नहीं वो मानता है? वो जानता है कि अगर हम दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हमारा अकीदा ज़ब्ह हो जाएगा। वो ये जानता है कि अगर हम हदीस की दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हम कौम को गुमराह नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो बुखारी शरीफ का नाम लेता है। और ये मेरे नौजवान बच्चे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको अगर कहीं कोई देख लेता है तो कहता अच्छा तुम जुलूस निकालते हो, झंडा लगाते हो, अपनी मस्जिदों पर तुम झंडे गाड़ते हो, बताओ बुखारी शरीफ में कहां लिखा है? रसूल पाक का तुम मिलाद मनाते हो, बुखारी शरीफ में कहां लिखा है? तुम खड़े होकर के सलाम पढ़ते हो, बुखारी शरीफ में कहां लिखा है? अब बेचारा ये मबहूत हो जाता है, डर जाता है और फौरन अपने आलिम के पास आता है, हजरत फलां ने मुझसे पूछ लिया मगर मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा बुखारी शरीफ में कहा है। हालांकि ये क्रॉस क्वेश्चन करना अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उस मकाम पर ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। इनको ये पूछना चाहिए कि हजरत चलिए ठीक है, मुझे तो याद नहीं है कि जुलूस मोहम्मदी निकालना बुखारी शरीफ में कहां लिखा है, लेकिन हजरत जरा आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपना जुलूस निकालने से मना किया है। आप वो हदीस बता दीजिए जिसमें रसूल पाक ने अपनी उम्मत को मना कर दिया है कि मेरे नाम का जलसा मत करना, मिलादुन नबी की महफिल मत सजाना। वो हदीस हमको, हम बुखारी शरीफ की बात नहीं करते हैं, आप किसी हदीस की किताब में दिखा दीजिए कि हुजूर ने फरमाया हो कि मुझ पर खड़े होकर के सलाम मत पढ़ना, हुजूर ने कहीं ये फरमाया हो कि मेरे नाम का तुम कभी झंडा न निकालना। मैं कहता हूं कयामत आ जाएगी मगर ये जो लोग बार बार बुखारी शरीफ का नाम लेते हैं वो एक ज़ईफ तो ज़ईफ है, कोई मौजू हदीस भी नहीं पेश कर सकते जिसमें रसूल पाक ने फरमाया हो कि मेरे नाम का जुलूस मत निकालना, मेरे नाम का झंडा मत निकालना, मेरे नाम पर तुम महफिल मिलाद मुनाकिद न करना। कयामत आ जाएगी मगर एक हदीस ज़ईफ भी वैसी नहीं दिखा सकते हैं। तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, कहीं अगर मिले ऐसे लोग तो उनसे कहिए हजरत जी जरा वो हदीस हमको नोट करा दीजिए जिसमें हुजूर ने मिलाद मुस्तफा मनाने से हमको मना किया हो। वो हदीस जरा दिखा दीजिए जहां रसूल पाक ने हमें खड़े होकर के सलाम पढ़ने से मना किया हो। वो हदीस हमको दिखा दीजिए जिसमें रसूल पाक ने महफिल मिलाद में झंडियां लगाने से हमको मना किया हो। वो हदीसें दिखा दीजिए ताकि हम अपने घर जाकर के लोगों को बता दें। मैं कहता हूं वो हदीस तो नहीं दिखा पाएंगे, अलबत्ता आप अगर चाहें तो उनको दिल में तारे जरूर दिखा सकते हैं, इसलिए कि कयामत आ जाएगी मगर वो ऐसी हदीस नहीं दिखा सकते कि जिसमें रसूल पाक ने अपने जिक्र से लोगों को मना किया हो। बल्कि हदीस उठाइए, कुरान की आयत उठाइए, अलिफ लाम मीम तो अलिफ लाम मीम है, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक अगर मोहब्बत की नजर से पढ़िए, तहकीक की नजर से पढ़िए, इश्क रिसालत की नजर से पढ़िए तो शायर का ये शेर आपकी जबान पर आ ही जाएगा कि बिस्मिल्लाह की बे से लेकर व नास की सीन तक ये सब के सब मेरे मुस्तफा का जिक्र है, रसूल पाक की अजमत का इजहार है। अलिफ लाम मीम की सूरत से लेकर के व नास की सूरत तक जिस
भी कलमे को आप उठाइए, हर कलमे में नबी की अजमत का आपको जलवा नजर आएगा। लेकिन जो बेइश्क मोहम्मद पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। रफीकान मोहतरम, बुखारी शरीफ का जिक्र आ गया था, बात कहां से कहां पहुंच गई थी? बुखारी शरीफ का तस्करा मैंने आपके सामने कर दिया। लोग कहते हैं बुखारी शरीफ दिखाइए, बुखारी शरीफ में कहा है? मैं बुखारी शरीफ ही को सिर्फ नहीं मानता, बुखारी शरीफ को भी मानता हूं, मगर उसके अलावा और भी बेशुमार हदीस की किताबें हैं जिनको हम मानते हैं, इसलिए कि सारी उम्मत ने हदीस की सिर्फ एक ही किताब को नहीं माना, बल्कि बहुत सारी किताबों को माना है। और अगर कोई जिद करे कि नहीं हम तो सिर्फ बुखारी शरीफ को मानते हैं, तो आप कहिए कि अगर आप बुखारी शरीफ को मानते हैं तो आइए हम बुखारी शरीफ के ताल्लुक से आपको कुछ बातें बताते हैं। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बुखारी शरीफ के लिखने का इरादा फरमाया और उसे लिखना चाहा, तो आपने सबसे पहले क्या किया? जब अपने वतन से हज के लिए मक्के मुकर्रमा तशरीफ ले गए, तो आपने हज के बाद सोचा कि मेरे ज़हन में, मेरी अक्ल में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो बहुत सारी रसूल पाक की हदीसें मौजूद हैं, उनको मैं कलम बंद कर दूं ताकि आने वाले लोग उससे फायदा उठाएं। आपने कलम लिया, कागज लिया, दवात ली और पहुंच गए मताफ में। खाने काबा के सामने हजरत इमाम बुखारी जाकर बैठ गए और सोचा कि लाओ जो हदीस रसूल मुझे याद है मैं उसे कलम बंद कर दूं और उसे कॉपी पे नोट कर दूं। मगर लिखने से पहले ख्याल आया, बात किसकी लिखने जा रहा हूं, इरशाद किसका नकल करने जा रहा हूं? वो महबूब जो सारी कायनात का महबूब है, जिससे बेहतर किसी की बात नहीं हो सकती है, जो मुस्कुराए तो गमजदों के लिए राहत का सामान बन जाए, जो महफिल में आए तो उसे लालाजार बना दे, जो गलियों से गुजर जाए तो उसे मुअत्तर कर दे, जो बाग में चला जाए तो खिजा को बहार में तब्दील कर दे। ऐसी अजीम जात की मैं बात लिखने जा रहा हूं। ऐसे नहीं लिखना है। कलम रख दिया, कागज रख दिया, दवात रख दी, पहुंच गए जमजम शरीफ के पास। आबे जमजम से आपने गुस्ल फरमाया और आने के बाद 2 रकात आपने मकामी इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फिर एक हदीस को आपने कलम बंद किया और उसे कॉपी में नोट किया। अब जब दूसरी हदीस लिखना चाहते हैं तो फिर जहन में बात आती है, मुस्तफा की बात है, आकाए दो जहां का इरशाद है, इसको लिखने के लिए जरा और एहतमाम कर लिया जाए। अब दूसरी हदीस लिखनी हुई तो फिर गए जमजम शरीफ के पास और फिर आपने गुस्ल किया और उसके बाद में आकर फिर आपने 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ी। इस तरीके से इमाम बुखारी ने पूरी बुखारी शरीफ की एक एक हदीस को कलम बंद किया है। इस तरह से इमाम बुखारी ने एक एक हदीस को लिखा है। आइए तमाम उन लोगों को आप जमा कर लीजिए जो बुखारी शरीफ और बुखारी शरीफ का नाम लेकर के कौम को गुमराह करते हैं। उनसे पूछिए कि जरा हमको एक हदीस ऐसी दिखा दीजिए जिसमें हुजूर ने ये फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले जाकर के आबे जमजम से तुम गुस्ल कर लेना, मेरी हदीस को लिखने से पहले तुम 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ लेना। एक भी हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले ये सब करना। आखिर इमाम बुखारी ने क्यों किया? जबकि हदीस में मौजूद नहीं है तो इमाम बुखारी ने हर हदीस को लिखने से पहले क्यों आबे जमजम को इस्तेमाल किया, क्यों 2 रकात नमाज नफल पढ़ी? इसका मतलब है हर फेल के लिए हदीस को मत तलाश, ताज़ीम मुस्तफा के लिए इस खुद अपना रास्ता मुतय्यन कर लिया करता है। नबी की ताज़ीम के लिए हर बात पर दलील का मुतालबा मत कर। हजरत इमाम बुखारी के अमल को देख, कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसमें रसूल पाक ने यह फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज पढ़ना। मगर इमाम बुखारी ने नमाज पढ़कर हदीस लिखी तो कयामत तक के मुसलमानों को यह बता दिया कि नबी की ताज़ीम के लिए दलील की जरूरत नहीं है, मोहब्बत खुद उसके लिए दलील मुतय्यन कर दिया। और जब इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रब तैयार कर लिया, पूरी फाइल जब तैयार हो गई तो मक्का शरीफ से लेकर वो मदीने मुनव्वरा चले।
مکہ سے کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے. کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے. اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے روضے پر جانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے. اب اگر کوئی بخاری شریف کا نام لیتا ہے تو اسے کہو تمہارے مولوی ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ کسی مزار شریف پر جانا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا نام لے کر اس نے لکھا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کو سفر کر کے جانا ناجائز و حرام ہے. بخاری شریف کی رٹ رکھانے والوں سے جا کر کے آپ پوچھو کہ تمہارا پیر، تمہارا شیخ، تمہارا امام ابن تیمیہ تو لکھ رہا ہے کہ روضہ رسول پہ جانا حرام ہے، اور تو بخاری شریف کی رٹ لگاتا ہے. اور امام بخاری نے جب اپنی پوری کتاب کا مسودہ تیار کر لیا، رف تیار کر لیا، تو فیر کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے روضہ رسول پر جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو تو صرف زبان سے مانتے ہو، الحمدللہ ہم بخاری شریف کو دل سے مانتے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب تم روضہ رسول پر جاؤ تو کس تصور سے جاؤ؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں مراقبے میں چلے جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور آنکھ بند کر لیتے تھے. کیا عقیدہ تھا امام بخاری کا کہ یہ حدیث رسول ہے، میں ذرا رسول پاک کو سنا دوں. اور یاد رکھیے یہ روضہ رسول پر جا کر کے امام بخاری نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ رسول پاک اپنی ظاہری حیات کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت امام بخاری نے جا کر بیان کیا ہے، بلکہ روضہ رسول پر حضرت امام بخاری نے حاضری دے کر کے ایک حدیث سنائی اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے آنکھ بند کر لی، سر کو جھکا لیا، دامن پھیلا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. امام بخاری نے اپنے دامن کو پھیلا کر کے یہ بتا دیا، اے بخاری شریف کی رٹ لگانے والوں، اگر تم رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہو گے تو تمہارا بخاری شریف کا نام لینا رب کی بارگاہ میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے. آؤ اہل سنت کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، یہاں سے تم کو یہ سبق ملے گا کون دیتا ہے، دینے کو من چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سیدنا امام بخاری ایک حدیث پڑھ کر اور مراقبے میں چلے جاتے. بند کر دے اس لیے کہ بارش آ رہی ہے. بتائیے کیا ہو، جلدی سے بتائیے. اس لیے کہ تھوڑی دیر اور آپ ایسے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیے، درود شریف پڑھ لیجئے اور تصور کر لیجئے گنبد خضرا کا اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پیش کر دیتے اور پھر سر جھکا لیتے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر سنا دیتے اور مراقبے میں چلے جاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ ابھی ادھر سے جواب آئے گا، ابھی رسول پاک کی طرف سے جواب آئے گا. اور جب جواب دل میں آ جاتا تب امام بخاری اس کو رب سے فیئر کیا کرتے تھے. اس سے پتہ یہ چلا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ وہ تھا جو بریلی کے رضا نے بتایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ بھی عقیدہ امام بخاری نے اپنا بتا دیا کہ نبی چاہے قبر انور کے اندر ہو یا باہر ہو ان سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھ. سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بخاری شریف کو جمع فرمایا. ترمذی شریف کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. میں نے بخاری شریف کا ذکر کر کے یہ باتیں اس لیے رکھ دی کہ اگر کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی
जो अपने आप को अहले हदीस कहलाता हो, अगर कहे बुखारी शरीफ में कहाँ है तो उसे कहो भाई तुम बुखारी शरीफ किताब को मानते हो, इमाम बुखारी को मानते हो कि नहीं मानते हो, पहले ये बताओ। इसलिए कि इमाम बुखारी का तो अकीदा यह है कि नबी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है, और तू अपनी किताब में लिखता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तू कहता है कि नबी से कुछ मत मांगो, नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी सुनते नहीं है, जबकि इमाम बुखारी का अकीदा यह था कि नबी सुनते हैं, कब्र के अंदर भी सुनते हैं, कब्र के बाहर भी सुनते हैं। तुम्हारे मौलवी ने अपनी किताब में लिखा है, इब्ने तैमिया ने अपनी किताब के अंदर तस्रीह की है कि रोज़े रसूल पर ज़ियारत के लिए जाना हराम है, जबकि इमाम बुखारी अपनी पूरी फाइल लेकर के मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जाते हैं। उनका अकीदा है कि नबी के रोज़े पर जाना ये हराम नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है, इसीलिए तो इमाम बुखारी वहां गए। अब बता, अगर तू बुखारी शरीफ को मानता है तो इमाम बुखारी के अकीदे को मानता है कि नहीं मानता है? उससे पहले फौरन ये सवाल कीजिए, और फिर बात आ गई तो और आगे सुन लीजिए। तो मैं अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेजी से मंजिल तक पहुंचा करके मैं भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना होने वाला हूं। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, सुभान अल्लाह, जब वो इस दुनिया से गए, खिदमत हदीस करते हुए गए, उनका मज़ार मुबारक कहां पर है नहीं मालूम है? उनका मज़ार मुबारक उनकी अपनी आबादी से कुछ दूर पर एक मकाम जिसका नाम उस जमाने में खरतंग था, उस जगह का नाम खरतंग था, बुखारा के एरिया में एक जगह है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार वहीं पर है। जब आपको दफन किया गया तो जब आपकी कब्र पर मिट्टी डाली जाने लगी तो उस मिट्टी से मुझको अंबर की तरह खुशबू आती और हफ्तों तक लोग उस मिट्टी को तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। जो लोग अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहते हैं और कहते दिखाओ बुखारी शरीफ में कहा है, उनसे कहो तुम्हारे नजदीक तो बुजुर्गों का तबर्रुक लेकर के जाना बिदात और शिरक है, जबकि इमाम बुखारी के कब्र की मिट्टी के लोग तबर्रुक के तौर पर ले जाते थे। इसका मतलब है कि तुझे धोखा देने के लिए बुखारी शरीफ का नाम लेता है। अगर तू वाकई बुखारी शरीफ को मानता तो इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजरिए को भी मानता, उनके अकीदे को भी मानता, और उनकी तुरबते अनवर की मिट्टी लोग तबर्रुक के तौर पर ले जा रहे थे, उसको उस जमाने के उलमा मुहद्दिसीन ने शिर्क और बिदात नहीं कहा। आज तू उसे शिर्क और बिदात कहता है। इसका मतलब है ना तू बुखारी शरीफ को मानता है, ना तू इमाम बुखारी को मानता है, ना तू मुहद्दिसीन को मानता है। हाँ, तू मानता है तो अपने नफ्स को मानता है। मैंने बुखारी शरीफ का जिक्र इतनी तफसील से आपके दरमियान कर दिया, लेकिन जो हदीस में आपको सुनाना चाह रहा था वो बुखारी शरीफ के हवाले से नहीं बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, बात यहां से चली थी, ज़हन फिर वही ले जाइए। रसूल पाक ने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। यह नहीं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान फरमाया। मगर गैर मुक़ल्लिद कहता नहीं 40 साल के बाद नबूवत मिली, वहां भी ये गड़बड़ घोटाला करता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक से अर्ज किया, रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबूवत, आपको नबूवत कब मिली, आप मनसबे नबूवत पर कब फाइज किए गए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्या, मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम आबू गिल की मंजिल में थे। मैं उस वक्त भी मनसबे नबूवत पर फाइज था जब अभी आदम का वजूद नहीं हुआ था। तभी तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, होते कहां खलील, कहां काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। कायनात का जर्रा जर्रा बाद में वजूद में आया है, मेरे मुस्तफा का नूर अल्लाह ने सबसे पहले। इसलिए सारे नबियों के नबी मेरे मुस्तफा है, सारे रसूलों के रसूल मेरे मुस्तफा है, सारी कायनात के सरदार मेरे मुस्तफा है। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया सबसे औला व आला। मगर वहां भी कहता है कि नहीं, नबी तो गांव के चौधरी की तरह होते हैं, नबी तो बड़े भाई की तरह होते हैं, बस उनकी इतनी ताज़ीम करो जितनी बड़े भाई की करते हो। तुमको ये अकीदा मुबारक हो और हमको हजरत जिब्रील का वो अकीदा मुबारक हो जिसमें हजरत जिब्रील ने ये फरमाया था, या रसूल अल्लाह
میں نے زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا, مشرق و مغرب کو دیکھا, مگر میں نے آپ جیسا کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا. اسی کی ترجمانی رضا نے کی ہے اور فرمایا یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا.